student from the diagram. Basically, some diagrams are not actually according to the particular scale. So you are not supposed to measure with the scale these diagram. All right. The diagram have been drawn actually just as a rough to show you the close picture of the diagram. And secondly, in the construction question, you must be able to find the locus using only the straight edge or ruler or pair of the compasses. I always insist that student use these instruments are very, is very important. Otherwise, if we go through the checking, so many students without these instruments drawing the straight line or graph or compasses, without these instruments, they are drawing the diagram. In fact, they are erasing their exam marks actually. The construction lines are the only proof for the examiner that you have to use the correct method. And some student in construction remove the arcs. Once you draw the arcs, so you are not supposed to remove them. Basically, these arcs are your working on the construction diagram. And thirdly, if you have to draw a graph, make sure you use a sharp pencil. Why? Because a blunt pencil could make your answer so inaccurate that you lose the marks. Actually, the marks given in, especially in graphical work, varies. For example, 1.1, 1.2, 1.3 are the same answer, considered the correct. But if you use the wrong pencil, तो definitely आपकी जो measurements होंगी वो उनमें difference आ जाएगा. So you will out of the range. And secondly, the fourth part is be careful with use square root signs. Look at this very simple example. Under root x plus 5 is not the same of this x plus 5 under root. So be very careful, like this example, x plus 5 over 12. Once you are basically simplifying this is not the same as under root x over 12. So these are two different things. Similarly, show as much working out as you can. Why? Because you get marks for the correct working. आपके पेपर की फर्स्ट टॉप शीट के ऊपर लिखा भी होता है बकायदा, रीड दीज इंस्ट्रक्शन फर्स्ट, और उस पे स्पेशली सेकंड जो आपके पास लाइन लिखी होती है उस पे ये मेंशन किया होता है नंबर 1 ब्लैक और ब्लू बॉल पॉइंट यूज करें. और सम स्टूडेंट्स लेड पेंसिल से कर रहे होते हैं या कलर बॉल पॉइंट यूज कर रहे होते हैं, दैट विल बी रॉन्ग वे. आपकी स्टेटमेंट ऑफ एंट्री के ऊपर भी लिखा होता है और आपकी सेकंड लास्ट लाइन में डिग्री ऑफ एक्यूरेसी भी मेंशन होती है और वैल्यू ऑफ पाई के बारे में बड़ा क्लियरली लिखा होता है. सो यू आर सपोज्ड टू यूज दैट वन. और थर्ड लास्ट लाइन इज स्पेशली उसमें इंडिकेट किया होता है कि ओमिशन ऑफ एसेंशियल वर्किंग will result in loss of marks. So you are requested to show proper working. नीचे हम जाके हम बात करेंगे कि कुछ command words को हम आपको introduce कराएंगे. So you have to properly use them. And similarly, the sixth point is do not assume. We are working on do and do not, do's and do not. So do not assume that an angle is 90 degrees. मैं हमेशा क्लास में बच्चों को बताता हूँ कि कुछ many डायग्राम कि आपको एक एंगल नजर आ रहा होता है कि ये 90 डिग्री की तरह का है, लेकिन आप उसको एज्यूम नहीं करना अनटिल एंड अनलेस किसी स्पेसिफिक प्रॉपर्टी के थ्रू, ठीक है ना, या उसमें वो साइन लगा होता है बेसिकली उसको क्लियर करने के लिए कि ये 90 डिग्री है. अदरवाइज यू कैन नॉट एज्यूम दिस एंगल इज अ राइट एंगल. ये सो मेनी स्टूडेंट्स ये डूइंग दिस, यानी साइन रूल को साइन रूल या ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज या ये जब भी यूज करते हैं तो बेसिकली वो उसको एज्यूम कर लेते हैं कि ये एंगल 90 डिग्री है. तो सम टाइम फिर इसको उनका डेफिनेटली आंसर भी रॉन्ग आता है. इफ अ ट्रायंगल इज अ राइट एंगल इक्वेटर आइसोसेलेस देन द क्वेश्चन विल से सो. यू मस्ट बी वेरी केयरफुल विद डेसिमल अमाउंट्स ऑफ टाइम. फॉर एग्जांपल 7 पॉइंट, ये आपके सिलेबस के अंदर भी अगर आप जाएंगे तो आपका जो टाइम वाला टॉपिक आएगा उसके अंदर ये मेंशन भी होता है, क्लियरली मेंशन होता है, ये जो खास तौर पे स्पेशली टाइम के वाले से लिखा होता है डेसिमल में. फॉर एग्जांपल 7.25 आवर्स इज नॉट द 7 hours 25 minutes. यूजुअली स्टूडेंट कैलकुलेशन में इसको एज इट इज यूज करते हैं, उन्हें टेक्निक आती है, मेथड आता है, कैलकुलेटर यूज कर लेते हैं, बट 7.25 आवर्स का मतलब क्या होगा? बिकॉज यू मस्ट फाइंड 0.25 of 1 hour, so which is 15 minutes. So 25 mean 15 minutes you have to take. The same is true the other way around. For example, 11 hour 42 minutes
is not 11.42 hours. We must do it 42 plus 60, that is equal to 0.7, and so right 11.7 hours will be the correct thing. So this is also written in your syllabus outline. जो लेटेस्ट आपका syllabus update है उसके अंदर भी ये mention होता है. So you have to be very careful about when you are using the time calculation. If you are number 4, if you are working out an answer in standard form, so this is very important. I would like to show you here. So standard form, everything is not written in this form. 5.6 into sometime 67.7 into 10 raised to power 9. That is not in the standard form until and unless this number along with the power of 10 must be in the specific range. This specific range should be 10 and 1. So ये जो number आपका 10 के साथ लगा होता है ये 1 और 10 के दरमियान होना चाहिए, ये वो वजह है. तो so every number in 10 की पावर में जो लिखा होता है that is not in standard form until and unless कि ये number इस range के अंदर ना हो. So be very careful when you are answering the answer in the your standard form. आप सबसे हमेशा बात में स्टूडेंट को कहता रहता हूँ कि आप बिफोर स्टार्टिंग योर सॉल्विंग योर क्वेश्चन मस्ट अंडरलाइन कि आपको उसने आपसे क्या मांगा है और क्या, और एट द एंड ऑफ द सॉल्यूशन ऑफ द क्वेश्चन यू मस्ट एनालिसिस फॉर अ व्हाइल कि क्या आपने तमाम चीजों का आंसर सही दे दिया है और सारे के सारे जो यूनिट आपके अंदर क्वेश्चन के अंदर दिए हुए थे, मेंशन किए थे, वो सारे एक जैसे सेम सिस्टम के अंदर है. सो ये सारी चीजें आपने केयरफुली ऑब्जर्व करनी एंड देन यू हैव टू सॉल्व इट. नेक्स्ट आपके पास कैलकुलेटर डिस्प्ले है. कैलकुलेटर के बारे में भी हम आगे चल के बात करते हैं. So calculator display and write 5.679, you will get no marks. The answer must be written as in standard form in the power of 10 and the correct answer will be 5.6 into 10 raised to power 9. This is basically 10 raised to power 9. So you must write in proper form. This number जो साथ लिखा होगा 10 के, ये must be in that specific range. Number 9, value of pi. आपके टॉप शीट जो रीड दीज इंस्ट्रक्शन पेपर की, दोनों पेपर्स की टॉप शीट पे ये मेंशन होता है कि आप जरा गौर से पढ़िएगा. आज जब आप इस मीटिंग से फारिग हो जाएं तो आप यू मस्ट रीड दिस इंस्ट्रक्शन. तो आपने जो वैल्यू ऑफ पाई या तो आपने देखिए 3.142 यूज करनी है या आपने वैल्यू स्टोर इन द कैलकुलेटर until and unless it is not mentioned in the specific part of the question. So please be very careful. Number 10, write degree of accuracy. For example, 3 significant figure, 2 decimal. You must be familiar with this degree of accuracy clearly. So especially in paper 2, once you are using trigonometry and mensuration question, उसमें specially mention किया होता है give your answer up to 2 decimal point, 4 significant figure. So throughout the paper, if the your answer is not accurate, यानी whole number में ना हो यानी decimal में हो, तो आपने 3 significant figure maintain रखनी है. और in case of angle, the degree of accuracy must be 1 decimal point. So ये 2 degree of accuracy आपकी top sheet पे mention होती है. इन्हें light नहीं लेना. आपके paper 2 के अंदर approximate 10 question ऐसे होते हैं जिनके अंदर अगर 10 marks ऐसे होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ राइट डिग्री ऑफ एक्यूरेसी और राइट आंसर पे डिपेंड करते हैं. नंबर 11, डू नॉट. अब उसी जो हमारा पहला इस वक्त सेशन चल रहा है दैट इज डूज एंड डू नॉट, उसमें 11 पॉइंट है प्रीमेच्योर राउंडिंग ऑफ. ये बात भी आपकी मोस्टली स्टूडेंट कर रहे होते हैं और ये मैं आपको हाईलाइट जरूर करूंगा कि मसलन फॉर एग्जांपल मैं आपको छोटी सी एक एग्जांपल देता हूं कि मेंसुरेशन का आप क्वेश्चन आप करते हैं या ट्रिग्नोमेट्री का करते हैं, तो उसमें आपने लेट से पहला पार्ट आपने किया है तो उसमें आपका आंसर आ गया 5.9876. अब इसको आपने राउंड ऑफ नहीं करना, आंसर को राउंड ऑफ करके रेडियस आता है या कोई साइड आती है वो राउंड ऑफ करके 2 डेसिमल प्लेस या 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक आपने दे दिया. लेकिन जब आप इस वैल्यू को अगले किसी पार्ट में आप यूज करना चाह रहे हैं, आपने देखा होगा बहुत सारे अगले पार्ट्स के अंदर यूज कर रहे होते हैं, तो सो यू आर नॉट सपोज टू राउंडेड ऑफ वैल्यू दैट इज 5.89, बल्कि आपने कंप्यूटर कैलकुलेटर की स्क्रीन पे जो 8 डिजिट तक आपकी वैल्यूज आती हैं वो सारी की सारी आपने कंप्लीट यूज करनी है, क्योंकि कैलकुलेटर इटसेल्फ जो है ना वो राउंड ऑफ करके आपको आंसर देता है. सो यू आर ऑल रिक्वेस्टेड टू यूज नॉट द प्रीमेच्योर राउंडिंग ऑफ मिस्टेक, and especially
in paper 2. Number 12, one column calculations are required once you are solving your paper. आप सबसे पहली बात यह कि आपने वन कॉलम कैलकुलेशन का मतलब आपको समझा दूं कि आपने इंतहाई लेफ्ट साइड से स्टार्ट करने, आपने एक कॉलम के अंदर आपने यानी वन इक्वल साइन, एक रो में वन इक्वल साइन आना चाहिए। ऐसा ना हो कि इक्वल के आगे फिर इक्वल वो आगे आप चलाते मिक्स अप हो जाता है सम टाइम, फिर एग्जामिनर के लिए बहुत सारे प्रॉब्लम क्रिएट होते हैं। और नेक्स्ट अब आपके पास बात है नंबर 13, स्टार्ट सॉल्विंग एक्सट्रीम लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करना है आपने। ये वजह है इसकी, लेफ्ट हैंड साइड से इसलिए स्टार्ट करेंगे आप कि अगर आपका लेट से कई दफा होता है आपका पेपर 2 में खास तौर पे जो बड़े क्वेश्चन होते हैं 12 मार्क्स के जिसमें बहुत ज्यादा वर्किंग चाहिए होती है और आप यूजुअली मिस्टेक कर जाते हैं, और अगर आप मिस्टेक कर जाते हैं और आप फिर उसको कैंसिल करते हैं तो यू डोंट हैव द स्पेस टू सॉल्व नेक्स्ट टाइम। जब आप लेफ्ट साइड पे इंतहाई लेफ्ट साइड से सॉल्व करना शुरू कर देते हैं तो आपका राइट साइड वाला सारा पेज आधा आपका ब्लैंक होता है, तो आप दूसरी दफा उसको इजीली फिर आप करके सही कर लेते हैं। लेकिन नंबर 14 इससे रिलेटेड है कि नंबर 14 में आपने कटिंग, अगर लेट से आपका पहला वाला सोल्यूशन आपने किया और आप समझते हैं कि वो गलत है, रॉन्ग हो गया, उसको आपने कट नहीं कर, क्रॉस नहीं करना। आपने किसी भी चीज को पेपर में आपने क्रॉस नहीं करना। आप एक लाइन लगाएंगे लाइक दिस वन, ऐसे स्ट्रेट लाइन लगा के आप इधर दोबारा साइड पे इसको सॉल्व करेंगे। अगर फिर भी गलत हो गया फिर तीसरी दफा भी सॉल्व करेंगे, क्योंकि आपने पेज आपने सेव कर लिया अपनी वर्किंग के लिए। तो एग्जामिनर विल चेक ऑल द 3 पॉसिबल सॉल्यूशन, बेस्ट वन विल बी कंसिडर। So be very careful about all these do's and do not. Now next हमारा इसी में थोड़ा सा कि how you can save your time for the paper 2 specially, कि usually बच्चों को पेपर 2 के अंदर स्पेशली मैं आपको इसलिए कहता हूँ कि वहां आपकी स्पीड बहुत स्लो होती है, तो वहां आपने टाइम कैसे सेव करना है और आप तक एंड तक आप चलते रहते हो। और उसमें पहली बात जो टाइम आपको सेव करनी चाहिए बाय रिड्यूसिंग अननेसेसरी स्टेप्स। आप अगर पेपर चेक करें ना 100 बच्चों के, उसमें 70 स्टूडेंट्स हैं वो अननेसेसरी स्टेप्स कर रहे थे। मसलन क्वाड्रेटिक फार्मूला आप कैलकुलेटर में यूज करते हैं, वैल्यूज आपने एक इक्वेशन लिखी, मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ, वैल्यूज आपने लिखी ए बी सी, क्वाड्रेटिक फार्मूला लिखा प्रॉपर्ली, उसके अंदर वैल्यूज ए बी सी के सब्स्टिट्यूट की, सब्स्टिट्यूट करने के बाद आपने शो कर दिया कि आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना आता है, क्वाड्रेटिक फार्मूला आपको आता है, और उसके बाद आप डायरेक्ट आप आंसर लिख सकते हैं ये 3-4 स्टेप्स के बाद। यू आर नॉट सपोज टू राइट ईच एंड एवरी स्टेप इन डिटेल, ना ही कोई इंग्लिश चाहिए होती है, पर प्रिसाइज कॉम्पैक्ट फॉर्म में आपने चलना है, तो देन यू कैन सेव योर टाइम। नंबर 1। नंबर 2, एफिशिएंट यूज ऑफ योर कैलकुलेटर। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिनको कैलकुलेटर के अंदर जो ब्रैकेट्स यूज करती है ना बार बार, उनको आप कैलकुलेट करना और एंड पे आंसर लिखना, ये मतलब डिटेल से आपको स्टेप करने की कोशिश करते हैं जो कि उनका टाइम कंज्यूम करते हैं और एंड पे टाइम नहीं बचता। नंबर 3, सबसे पहले अंडरलाइन व्हाट इज रिक्वायर्ड एंड देन सॉल्व। आप क्या करते हैं, मैंने देखा है जब पेपर चेक किए जाते हैं या हमारी जो एक्टिविटीज हैं बच्चों के साथ डे एंड नाइट की चलती रहती है, बच्चा पहले करते बाद में सोच रहा होता है कि अच्छा वो ये तो मैंने करना ही नहीं था। तो सो यू आर रिक्वेस्टेड, सबसे पहले आपने उस क्वेश्चन को, आपकी जो रिक्वायरमेंट है उसको अंडरलाइन करें। आप सारा डिग्री ऑफ एक्यूरेसी को अंडरलाइन करें, अगर यूनिट दी हुए दिमाग के अंदर आएगी, देन उसके जो सही फार्मूला है उसको आप लिखें और उसके अंदर वैल्यूज पुट करें। इंस्टेड ऑफ दिस डो नॉट ब्लाइंडली स्टार्ट टू सॉल्व द क्वेश्चन। तो सो इससे आपका टाइम बच जाएगा, बजाय से कि आप एक दफा सॉल्व करें फिर दूसरी दफा सॉल्व करें फिर कैंसिल करते हैं और इस तरह टाइम आपका बहुत जाया होता है इस तरीके से। नंबर 4, फर्स्ट अटेम्प्ट, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। नंबर 4, आई होप कि आप में से अक्सर स्टूडेंट ऐसा नहीं करते। सबसे पहले आपने वो क्वेश्चन करने जो आपको 100% सही आते हैं, बेस्ट। सबसे पहले आप, यानी अगर पेपर 1 की बात करें तो वो 2 घंटे का पेपर होता है, 2 आवर्स का। आपने पहला जो घंटा है उसमें सिर्फ वो क्वेश्चन करने जो आपको बेहतरीन आते हैं। उसकी वजह है कि आप पेपर के अंदर जब आपको क्वेश्चन का कोई पार्ट रह जाता है तो आपको टेंशन होती है। जब टेंशन हुई नहीं है तो आप अगले सारे तो आपको आते भी है ना, उनमें भी आप फिर गलत आप स्टेप कर जाते हैं। सो सबसे पहले आपने फर्स्ट अटेम्प्ट दोस क्वेश्चन आप जिनको आप समझते हैं कि आपको बेहतरीन आते हैं, ठीक है सर, बाय द सफिशिएंट। और ये कैसे आप प्रैक्टिस आपकी हो सकती है, बाय सफिशिएंट रिटन प्रैक्टिस फ्रॉम पास्ट पेपर यू कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम एफिशिएंटली। सो पास्ट पेपर तो आप सब करते ही होंगे, यकीनी बात है। आपके टीचर माशाल्लाह सब लोगों के, सब स्कूलों के बहुत अच्छे हैं माशाल्लाह, और आप डेफिनेटली पास्ट पेपर्स को कर रहे होंगे और उनको आप प्रैक्टिस से ही आपका ये मेंसुरेशन
ट्रिग्नोमेट्री और बहुत सारे दूसरी जो क्वेश्चन है वो आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। और ये जो बातें ऊपर आपने की हैं डूज एंड डू नॉट की, इनको इम्प्लीमेंट कीजिएगा, फिर देखिएगा इंशाल्लाह आपका टाइम डेफिनेटली सेव हो जाएगा। नंबर 6 और आखिरी बात, किस टाइम को आपने मैथ के अंदर स्पेशली टाइम का बहुत इश्यू होता है, प्लीज डिवाइड योर टाइम वाइजली। फॉर एग्जांपल कैसे आपने डिवाइड करना है, जो आपका ग्राफ का, ट्रिग्नोमेट्री का और मेंसुरेशन इनके क्वेश्चंस होते हैं, ये तकरीबन 12 से 15 मिनट की रेंज में खत्म हो जाना चाहिए, जबकि आप इसके अंदर ऑलमोस्ट आधा आधा घंटा लगाते हैं। तो इसमें 20 मिनट या 25 मिनट नहीं होते, इस क्वेश्चन के लिए 12 से 13 मिनट आपके टोटली होते हैं। पहला हमारा सेशन यहाँ पे कंप्लीट होता है, डूज एंड डू नॉट एंड हाउ टू सेव द टाइम। आप अपने पास नोट कर छोड़िएगा, इसके अलावा भी कोई बात आप क्वेश्चन पूछना चाहें, वी आर रेडी टू हेल्प आउट यू एनी टाइम। नेक्स्ट हमारे नेक्स्ट 15 मिनट्स है, दैट इज अबाउट द रिवीजन टिप्स। आपने सिलेबस खत्म कर लिया, पास पेपर आप कर रहे हैं, लेकिन कई बच्चों को मैं देखता हूं कि पेपर से पहले ख्याल आता है, यानी कल पेपर होता है या 1-2 दिन के बाद पेपर होता है, ख्याल आता है कि फलां टॉपिक तो हमने की ही नहीं है। तो यू आर रिक्वेस्टेड टू गो थ्रू द सिलेबस, सारे टॉपिक को 1 बाय 1 पढ़ें, और उनमें जो टॉपिक आपके नए इंक्लूड हुए हैं, फॉर एग्जाम्पल अभी आप सिलेबस खोलेंगे, उसमें कोरिलेशन, लाइन ऑफ बेस्ट फिट, ठीक है, लाइन ऑफ बेस्ट फिट, स्कैटर डायग्राम, ठीक है, नेट्स और स्ट्रेच और शीयर उससे निकल चुका है, लोसाइन 3 डायमेंशन वगैरह वगैरह। और आईजीसीएसई के अगर कोई स्टूडेंट आपके अंदर बैठा हुआ है तो उस पे 6 टॉपिक नए ऐड हुए हैं, और कोई लोसाई उसमें से माइनस हुआ है, तो इसमें ये टॉपिक नए इंक्लूड हुए हैं। और पास्ट पेपर 2020 से ऑनवर्ड के जो पास्ट पेपर है, या 2020 का जो स्पेसिमेन पेपर है, वो आप देखेंगे तो ये नए टॉपिक ऑनवर्ड, नए टॉपिक के साथ ये सारे पेपर आपको मौजूद होंगे। सो यू मस्ट नो कि व्हाट आर द चेंजेस। 2015 में अगर कोई 25 में कोई बच्चा अगर अपेयर हो रहा है तो उसमें बहुत सारी चेंजेस आएंगी, वो आप बाद वाले बच्चे देखेंगे जो आपके बाद इंशाल्लाह आएंगे। तो ये पहली बात आपके पास ये है कि चेक योर सिलेबस सो दैट यू नो व्हाट टॉपिक यू नीड टू कवर। Number 2, find out which formula are printed on your exam paper and which one you have to learn. For example, mensuration की बात आप करते हैं तो 2025 से ऑनवर्ड पेपर के अंदर सारे मेंसुरेशन के फार्मूले तमाम जितने भी होंगे वो गिवन होंगे, जैसे ए लेवल्स के अंदर दिए होते हैं। अब आपको कौन से फार्मूले गिवन होते हैं ये मैं आपके सिलेबस के अंदर भी लिखा होता है, और आप सिलेबस से गो थ्रू करेंगे, यानी इस वक्त हम रिवीजन टिप्स की बात कर रहे हैं, तो यकीनी बात है आप वहां पे भी ये बात पढ़ पाएंगे। उन्होंने मतलब क्लियरली लिखा है कि आपके पास मेंसुरेशन के जो फार्मूले गिवन होंगे, कौन का गिवन होगा, सफेयर का गिवन होगा, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, कौन का सरफेस एरिया, पिरामिड का गिवन होगा, और प्रिज्म का। इसके अलावा बाकी सारे के सारे आपको याद करना। होपफुली यू आर मच क्लियर अबाउट इट। गो थ्रू योर सिलेबस, मेक अ लिस्ट ऑफ टॉपिक यू हैव ट्रबल विद। मसलन कुछ सिलेबस आपने पढ़ा होता है, सारा कुछ पता होता है, लेकिन आपको ये नहीं पता होता कि आप मुझे कौन सी चीज आती है, कौन सी चीज नहीं आती। आप अपने जो टॉपिक है सिलेबस के अंदर वो मार्क करें, जो आपको अच्छी तरह आते हैं उनको टिक कर दें, टॉपिकल ले लें आप, या आपका सिलेबस आप डाउनलोड करके उससे देख सकते हैं। जो आपको प्रॉब्लम क्रिएट करें उन पे सर्कल ड्रॉ करके अपने जो स्कूल के टीचर हैं उनके पास टाइम टू टाइम जाएं, उनसे टाइम लेके उनके पास सॉल्व करें। नंबर 4, स्टार्ट विद what you are doing, move on to more difficult example, work through the past paper from your teacher, a revision book, some exam board and so on. Ask your teacher for some practice, ये already मैं आपसे बात कर चुका हूँ। Do not leave your revision to the last minute, माने आपके पास एग्जाम से बहुत 2-3 दिन पहले आपकी तमाम रिवीजन, तमाम चीज आपकी कंप्लीट हो जानी चाहिए, रादर कि आप एंड तक आप रिवीजन, अब आप जस्ट टू रिवाइज देम बस। You need strong फाउंडेशन इन बेसिक मैथ्स टू बिल्ड ऑन। ये भी ओरल, जैसे आपके P1 के अंदर बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे आ रहे होते हैं जिसमें आपकी 3-4 क्वेश्चन ऐसे होते हैं इस स्टाइल के कि जो आप समझते हैं कि तो सिलेबस के अंदर वो एप्टीट्यूड टेस्ट के रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं, उनका सफिशिएंट प्रैक्टिस से ही वो आपका पॉसिबिलिटी होती है उनको सॉल्व करना। नेक्स्ट नंबर 8, मेक श्योर यू हैव टू करेक्ट इक्विपमेंट मस्ट टू। आपके पास ये बड़ी, मैंने 10 इयर्स एज एग्जामिनर ड्यूटीज भी दी है आपके एज एन एग्जामिनर। इसमें बहुत सारा प्रॉब्लम वहां एग्जाम हॉल के अंदर बच्चों को आते हैं जब उनके पास कंपास या स्केल या फुट रूलर या बॉल पॉइंट खत्म हो जाते हैं। आप सफिशिएंट चीजें आपने टू पेंसिल, 2 कैलकुलेटर लेके जाएं, फुट रूलर भी लेके जाएं, सारी रेजर, शार्पनर, कंपास, तमाम सामान, क्योंकि वहां हर बंदे को अपनी अपनी पड़ी होती है। नो वन इज देयर
कि जो आपकी कोई हेल्प करेगा। इवन कि अगर मैं भी एज ए एग्जामिनर वहां आऊंगा तो आप आई कांट हेल्प यू बिकॉज आई डोंट हैव एनीथिंग टू हेल्प आउट यू, ठीक है। और इसमें बहुत सारी चीज आप देखें, लेड पेंसिल, आप स्कूल के एग्जाम में भी आप देखते होंगे एक दूसरे से बच्चे मांग रहे होते हैं। ट्रांसपेरेंट पाउच इज रिक्वायर्ड। दूसरा जो ज्योमेट्री बॉक्स होता है मैथ का, जो आपकी चीजें रखने के लिए, उसको आप घर छोड़ के जाएं और ट्रांसपेरेंट पाउच पे सब चीजें लेके जाएं। Next, number 9. When you are allowed to start your exam, take a few minutes to settle down. Read the paper thoroughly, carefully, and then take the start. जस्ट पकड़ के स्टार्ट नहीं करना आपने। मैंने जो पहले ऊपर बताया डूज एंड डू नॉट के अंदर, वो आपने क्लियरली उस तरह आपने चलना है। सो रीड अ क्वेश्चन थ्रू, read it again and again, and underline any important information. Decide what calculation you need to carry out. Show all your working omission of essential working will result in loss of marks, except the command word जो आगे चल के मैं आपको mention करता हूँ. Even if you are using a calculator, you get marks for your method, and if it is correct, write your answer in the. अच्छा, ये बात भी एक और बड़ी दिलचस्प बात आपको बताऊं कि जो आप पेपर कर तो लेते हैं, लेकिन आंसर स्पेस के अंदर जब आंसर लिखे होते हैं ना, कई बच्चों ने आंसर लिखे 2-3 दफा कट करके ऊपर लिखे होते हैं साइड पे। चलो जी, एक ना एक तो ठीक होगा। तो ये स्ट्रेटजी आपने रखनी। आपने पेपर के आंसर स्पेस में आंसर एंड पे लिखना है। बिल्कुल जब आप कंफर्म हो जाए आपको एट द एंड आप देख लिया और ये आंसर बिल्कुल सही है, नीट एंड क्लीन आंसर इज रिक्वायर्ड in the answer space rather to write up 2-3 answer and then cancel it out. Enough time to thorough check your working answer. Number next, without a calculator, especially paper 1 की बात इस वक्त हो रही है। ये इसमें बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन होते हैं, आपने देखा होगा एलसीएम लेना, एचसीएम, डिवीजन, डेसिमल के मल्टीप्लिकेशन, डेसिमल की डिवीजन और बॉडमैस का यूज। ये स्पेशली लुक फॉर डिफरेंट मेथड के ऊपर। आप देखिए मेथड के ऊपर कोई पाबंदी नहीं होती, जोन सा मर्जी आप मेथड आप यूज करेंगे, दैट विल कंसिडर एज करेक्ट मेथड। डू plenty of practice of our paper 1. Unstructured questions. Read question carefully and plan what to do, what do I have to find, what method can apply, and any method you can apply. Look back when finished and ask, have I answered the question properly? Then आपने आंसर स्पेस के अंदर आंसर लिखना है। एक्यूरेट डायग्राम, ये बड़ी दिलचस्प बात है, आप जरा इसको केयरफुली सुनिएगा। आपके इक्विपमेंट, रेगुलर प्रैक्टिस, कंपास का यूज, प्रोटेक्ट। अभी भी देखें हम स्कूल्स में और देखते हैं एग्जामिन जब बच्चे पेपर देने आ रहे होते हैं, उनको प्रॉपर इन चीजों का यूज नहीं आ रहा होता, ना ही उनको। स्पेशली बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो डी यानी प्रोटेक्टर सेट स्क्वायर से आप उसके एंगल में भी मेजर नहीं कर पाते। सो प्लीज आपने ये बात याद रखनी है कि हाउ टू मेजर द एंगल। गो टू योर टीचर, डोंट हेसिटेट, आस्क देम वेरी सिंपल क्वेश्चन। उनसे पूछते हैं आपके सर जी हमें जरा दोबारा समझा दें, कोई इश्यू नहीं है समझने में। पेपर से पहले आप यू हैव द डेमोक्रेटिक राइट। प्लॉटिंग पॉइंट्स एक्यूरेटली, जब पॉइंट जैसे ग्राफ का क्वेश्चन है, मैं थोड़ा सा आपको बता दूं कि ग्राफ के अंदर पॉइंट आप ड्रॉ करते हो तो वहां एक इस तरह का के सर्कल लगा दिया करो उसको प्रोमिनेंट करने के लिए, या सर्कल ड्रॉ कर दिया, क्रॉस लगा दिया करो। और जब आप इसको ज्वाइन करना होता है तो स्मूथ कर्व इज रिक्वायर्ड एक्सेप्ट द क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। उनकी उसके अलावा बाकी तमाम में स्मूथ कर्व रिक्वायर्ड होती है। मैं स्मूथ कर्व आपको दिखाता हूं जरा साइड पे। अगर आप यहाँ ग्राफ का जस्ट वेट, मैं नीचे आपको एक कर्व दिखाता हूं जिसमें आपने इसको देखना है क्लियरली। ये देखें, अब मसलन पॉइंट आपने ड्रॉ किए, ये मैंने आपके लिए ड्रॉ करके ऑलरेडी रखा हुआ ताकि आपका टाइम बच जाए। लुक एट दिस, ये आपने पॉइंट लेट से ड्रॉ किए हैं आपने। अब इन पॉइंट को ज्वाइन करना, देखिए मैंने उनको क्लियरली आपको ये क्रॉस लगाया ताकि पता चल सके कि ये पॉइंट आपके पास ये इसमें आपने ड्रॉ किए। इनको जब आप ज्वाइन करेंगे, ये 2-2, 3-3 लाइनें नहीं ड्रॉ करनी, ना ही बड़ी मोटी वाली लाइन ड्रॉ नहीं करनी, बल्कि आपने शार्प पेंसिल यूज करनी है टू ज्वाइन देम। एंड इंस्टेड ऑफ स्केल आपने स्ट्रेट लाइन अगर ज्वाइन करनी है, इसका ग्राफ अपना ड्रॉ करने है, टेबल बनाया तो इसका स्ट्रेट लाइन आपने स्केल से ज्वाइन करनी। और इनको स्मूथ कर्व इज रिक्वायर्ड। आप स्मूथ कर्व का मतलब आपको पता चल ही गया होगा कि उसका क्या मतलब होता है। ठीक है सर, आगे चलते हैं। आगे नेक्स्ट हमारे पास बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, दैट इज कर्व टू द पॉइंट, avoiding thick and feathery lines. Mostly students do not know how to measure the angle and draw the accurate diagram. Number 2, smooth curve is required instead of the joining the point with scale. ये भी आपने याद रखना है। Efficient use of calculator, इस पे बात हम पहले कर चुके हैं। Checking of answer, ये बात भी हम आप करें। Well laid out concise work। अब जहां पे आपने let's say
कुछ स्टेटमेंट देनी होती है। आपने देखा होगा ना स्टेटिस्टिक का जो क्वेश्चन होता है स्पेशली उसमें, और जहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन को डिफाइन करना होता है। मैथमेटिक्स स्पेशली नीड नॉट सो मेनी इंग्लिश, यानी मुश्किल मुश्किल अंग्रेजी आपने उधर नहीं लिखनी, बल्कि सिंपल इंग्लिश का बिल्कुल प्रिसाइज किस्म की बात। एक लाइन देखी उधर, एक या दो लाइनें छोड़ी होती हैं बस, उतनी 2 नंबर का या 3 नंबर का ये पार्ट होता है, आपने उतनी बात करनी है जितनी उसने मांगी है। सो ऑल रेलेवेंट, आपने जो भी बात आपने लेट से कमेंट करना है अपने आंसर के ऊपर, कई दफा पूछता होता है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की ये किसको रिप्रेजेंट करना है, तो बिल्कुल प्रिसाइज बात आपने लिखनी है। इसी तरह अगर ज्योमेट्रिकल ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर ए मैप ऑन टू बी बाय एन एनलार्जमेंट विद सेंटर ऑफ एनलार्जमेंट दिस, एंगल ऑफ दिस, डायरेक्शन दिस, या रोटेशन है ये जो भी है उसके अंदर आपने ये सारी चीजें मेंशन करनी। सो नेक्स्ट हमारे पास बात आएगी अगली, जो हमारे पास तीसरा पोर्शन है आज का, दैट इज आर 15 मिनट्स मोर। एग्जाम्स आर नॉट द मेजरमेंट ऑफ योर नॉलेज बट द मेजरमेंट ऑफ योर प्रोग्रेस इन द नॉलेज। सो एग्जाम टेक्निक्स, आपकी जो 10 स्टेप्स है इनको भी आपने याद रखने के, कैसे आपने पेपर से पहले कैसे आपने आप को प्रिपेयर करना है। पहला फर्स्ट स्टेप नंबर 1, हैव ऑल नेसेसरी मटेरियल विद यू। ये ऑलरेडी भी हम बात कर चुके हैं, ऊपर भी थोड़े से जितने भी आपके पास हैं। नंबर 2, हैव अ रिलैक्सिंग नाइट बिफोर यू एग्जाम। ये नहीं होना चाहिए कि रात जी हम कंबाइंड स्टडी कर रहे हैं, सारी रात बच्चे पढ़ते रहते हैं, सुबह जब पेपर के लिए जाते हैं तो उनको ऊँग आई होती है। कई बच्चे ऐसे होते हैं जो वहाँ एग्जाम हॉल के अंदर या बाहर उनकी आंखें बंद हो रही होती, पेपर हो लेट नाइट तक जागने की बजाय आप जल्दी सो जाया करें। रीड द एंटायर क्वेश्चन पेपर where you have choices, decide which one you have to plan to answer. एक बात आपसे करनी है, ट्रेसिंग पेपर एंड फ्लेक्सिबल कर्व, ये आप ले जा सकते हैं वहां पे, ये अलाउड है। आप अगर आपको फ्लेक्सिबल कर्व या ट्रेसिंग पेपर का पता है तो ये बहुत अच्छी बात है, नहीं पता तो आपने इसको खरीद लेने हैं बाजार से, किसी भी बुक शॉप से मिल जाएंगे आप। नेक्स्ट हमारे पास नंबर 4 है, प्लान योर टाइम। ये भी हम बात ऊपर कुछ आपको डिटेल से कर चुके हैं, टू सेव हाउ, किस तरह आपने टाइम बचाना है। नंबर 5, jot down ideas as they come to you. Number 6, do not leave any question unanswered. वहां बात, बच्चे ऐसे भी होते हैं जो कई जो क्वेश्चन होते हैं, मसलन सपोज आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन को पहले प्रूव करना है, ग्राफ वाले क्वेश्चन में यूजुअली होता है, या मेंसुरेशन वाले क्वेश्चन के अंदर होता है। पहला जो पार्ट है वो आपने फर्स्ट पार्ट जो होता है बेसिकली वो प्रूव करना होता है, वो 2 या 3 नंबर का होता है। उसके बाद उसके क्या होता है, या तो ग्राफ ड्रा करना होता है या क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज करके आपको सॉल्व करना होता है। तो यूजुअली ये पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है, जरा इसको याद रखिएगा। तो आप उस प्रूफ की वजह से सारा क्वेश्चन ही अगले पार्ट में छोड़ के आ जाते हैं। हालांकि पहला पार्ट अगर 2-3 नंबर का अगर आपसे नहीं भी हो पा रहा और उसके अंदर आपको डिफिकल्टी आ रही है या कोई किसी वजह से नहीं होता, तो एंड पे आप देख लीजिएगा, लेकिन उसके बाकी पार्ट्स जाए, जितना आपसे हो सकता है उतने मार्क्स तो आप जरूर लें। नेवर लीव द रूम अर्ली। यहाँ एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट आपसे करूं, वो आप यूजुअली स्कूल के पेपर में भी आप करते हैं, और वहां जब मैं देखा एज एग्जामिनर तो वहां भी बहुत सारे बच्चे इस तरह करते हैं। देखा ना कि वही सारे बच्चे जा रहे हैं, दोस्त बाप जा रहे हैं, तो बस वही पेपर को छोड़ा और उनके पीछे चल पड़ते हैं। डोंट फॉलो देम, बल्कि अपना पूरा टाइम स्पेंड करें। जब तक आपका टाइम है पेपर का, तो आप उसका बार चेक करें, उसके आंसर चेक। दफा बंदे ने पहले किया होता है और बाहर आके पता चलता है कि बंदे में वो तो गलत कर रहा है। सो नंबर 8, डू नॉट स्पेंड टू लॉन्ग और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जब मैथ पे बहुत कम ही होते हैं, लेकिन मैं नीचे आपसे बात करता हूँ कमांड वर्ड जब हमने यूज करने तो उसमें क्वेश्चन वर्किंग नहीं चाहिए होती, उन कमांड वर्ड्स को यूज करके आपने वो आंसर लिखने होते हैं। सो यू शुड बी वेरी वेरी केयरफुल अबाउट दिस। नेवर ओमिट एन एंटायर क्वेश्चन, ये बात भी आपसे होगी। मेंटेन अ स्टेबल एनर्जी लेवल, तो ये बात भी बड़ी इंपॉर्टेंट है जो आपने ये रखनी है कि आपने, यूजुअली बच्चे नाश्ता किए बगैर ही वहां चले जाते हैं, तो ऑब्वियस सी बात है जहाँ पे कई दफा आपने देखा होगा 2-3 पेपर एक ही दिन में होते हैं, तो वहां पे फिर आपको प्रॉब्लम होता है। सो आपने एनर्जी लेवल मेंटेन रखना है आप। सो दिस इज ऑल अबाउट द थर्ड एग्जाम टेक्निक्स क्या होती है। नाउ द फर्दर मोर हम पेपर 1 और पेपर 2 का जरा थोड़ा सा आपसे बात करते हैं। पेपर 1 की आपको पता होगा
जो मार्क्स होते हैं वो 80 और पेपर 2 के 100 मार्क्स हैं। इनकी वेटेज दोनों की बराबर होती है, 50% P1, 50% P2। सो पेपर 2 के अंदर में जो आपके पास टिप्स हैं वो ऑन पेपर 2 की जरा दे दूं। यू आंसर इन द पेपर ऑन द paper with the graph question done on the graph paper on the paper. You need a calculator और logarithm table भी आप यूज कर सकते हैं अगर एड मैथ के स्टूडेंट है आप में से कोई। ये बातें भी पहले हो चुकी। राइट इन डार्क और ब्लू बॉल पॉइंट, ये भी पेपर के हवाले से, पेपर 2 के हवाले से वेरी इंपॉर्टेंट बात है। ये सारी बातें हम ऊपर कर चुके हैं। और यहाँ मैं एक चीज आपसे शेयर करना चाहता हूँ, ये वाली। This is very important point. Know the meaning of the different demand words used in the examination papers. पहला जो होता है, फॉर एग्जांपल आपके पास है राइट डाउन। इन कमांड वर्ड्स को आपने स्पेशली आपने पेपर 1 के अंदर है, पेपर 1 पेपर 2 के अंदर भी होता है। राइट डाउन का मतलब दिस इज अ हिंट दैट नो वर्किंग इज नीडेड। प्लीज डू रिमेंबर इट। फाइन, you can use whatever method you like. Calculate, you will get no credit for the scale diagram. Explain, show, working is needed or informal reason. Prove, more formal reason are needed, particularly in geometry or the quadratic equation. This is all about पेपर 1 और पेपर 2 की टिप्स ऑलरेडी मैं ऊपर आपसे शेयर कर चुका हूँ। रिवीजन चेकलिस्ट भी आपसे शेयर हो चुकी है बकायदा। और दिस इज ऑल अबाउट ये टॉप 10 टिप्स। लास्टली 5 मिनट और आपके लेता हूँ, फिर आप इंशाल्लाह ताला फ्री हैं। पहला जो टिप है मैनिपुलेटिंग अलजेब्रा। ठीक है, इस पे अलजेब्रा में जो आप खास तौर पे आइडेंटिटी आप यूज करते हैं a प्लस बी, a माइनस बी। तो a प्लस बी और a माइनस बी को जब आप यूज करते हैं तो आप क्लियरली ये बात मेंशन की होती है, यानी आप ये इस तरह कर लेते हैं। देखिए मोस्टली स्टूडेंट यूं कर रहे होते हैं, ये जो स्क्वायर है जी ऊपर लेके जाएगा, ये दिस इज नॉट इक्वल। इसको आप a प्लस बी की आइडेंटिटी से प्रॉपर इसको एक्सपेंड करना है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। एंड सिमिलरली a माइनस बी स्क्वायर is equal to a square minus 2ab plus b square. So you have to इस तरह factorization में, so when you are dealing with the algebra, you must know how to use the identity, how to expand it. Secondly, without a calculator, वो सो ये प्रैक्टिस से ही आपके पास आ सकती है। ऊपर मैंने आपको ये बात बता दी। एंड सेनी एक्सप्लेनेशन, ये बात भी प्रिसाइज यूजिंग क्लियर एंड कंसाइज इंग्लिश। you must comment then होता है, and a relevant comment is required, not that so many detail. Unstructured question के बारे में भी आपके साथ बात डिटेल से हो चुकी है। एक्यूरेट डायग्राम के बारे में भी आपसे एफिशिएंटली हो चुकी है। चेकिंग आंसर के बारे में भी, एंड वेल लेड आंसर, एंड दैट्स इट। एंड अगर कोई आपका प्रॉब्लम हो तो आप अपने टीचर से बात कर सकते हैं चैट में। आपका हमको आंसर हम इंशाल्लाह ताला एट द एंड ऑफ दिस सेशन हम देंगे। अगर कोई क्वेश्चन आपने पूछना है तो वी विल डेफिनेटली आंसर योर क्वेश्चन। एंड थैंक यू वेरी मच टू जॉइन दिस सेशन, और आई एम ग्रेटफुल। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर अपकमिंग एग्जाम। सी यू इंशाल्लाह ताला। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम।